My precious children of God, how nice to talk to you regarding the Word of God and the Lord who can bless us in a beautiful way. मेरे परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, आपसे बातें करना सच में बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे सुंदर रीति से बातें करें। Today He is going to bless us in a new way. आज वो हमें बिल्कुल नए तरीके से Let us read the Word of God. और वो क्या है, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। John 14:26 says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you." यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। My friends, you are going to receive a great blessing today. मेरे दोस्तों, आज आप महान आशीष पाएंगे। Even though the time is short, we are going to receive a great blessing from the Lord. हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर से हम बहुत ही महान आशीष पाएंगे। Yes, we read in Luke 11:13 just like this. लूका 11:23 में हम इसी तरह से पढ़ते हैं। If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? ये कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। According to this verse, the Lord is going to bless you with the Holy Spirit. इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष देंगे। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? 2 Corinthians 3:17 says, the Lord Himself is the Holy Spirit. दूसरा कोरिन्थियों 3:17 कहता है कि स्वयं प्रभु ही पवित्र आत्मा है। In the form of Holy Spirit, the Lord Himself will enter into your lives. और पवित्र आत्मा के स्वरूप में स्वयं प्रभु आपके जीवन में आएंगे। He will make you shine for glory. और वो आपको अपनी महिमा के लिए तेजो में करेंगे। Yes, Isaiah 44:3 says like this. यशायाह अध्याय 44 वचन 3 यही तो कहता है, God shall pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. I'll pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. ये कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। In the year 1962, when my husband received the baptism of the Holy Spirit, he used to come and tell me about all his experiences. 1962 में जब मेरे पति ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो वो आकर मुझे अपने सारे अनुभव बताते थे। After a lot of suffering, we got a boy child that time. तो उस समय बहुत से दुखों और परेशानियों के बाद में हमें एक बेटा, That was Paul Dinakaran. और वो है बॉल दिनकरन। Even though we had a child, beautiful child like that, we were thinking about the Holy Spirit, how to receive it. और उस समय हमारे पास सुंदर संतान थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि पवित्र आत्मा हम कैसे पाएं। God put a thirst in my heart and I used to ask my husband many questions how to receive it. और परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये प्यास रखी थी और मैं अपने पति से हमेशा सवाल पूछती थी। I was staying with my mother because of the child. और बच्चे के कारण मैं तो अपनी माँ के साथ रहती थी। During night time I will kneel down and cry out to the Lord. रात के समय मैं घुटने टेक कर प्रभु को पुकारती थी। Every day I will cry. हर एक दिन पुकारती थी, Either you give Holy Spirit or I die. और प्रभु एक तो आप पवित्र आत्मा दीजिए या फिर मैं मर The जाऊं। Lord heard my cry. प्रभु ने मेरी पुकार सुनी। It's a big story. ये बहुत बड़ी कहानी है, It is going to happen in your own life. लेकिन आज ये आपके अपने जीवन में होगा। The word of God says, ask and it shall be given unto you. परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Yes, I asked the Lord. और मैंने परमेश्वर से मांगा I was blessed. और मैंने आशीष पाई। Even today I am doing the Lord's work in my 86 years old life because of the Holy Spirit. आज मैं 86 साल की उम्र की हो चुकी हूँ और अभी केवल पवित्र आत्मा के कारण मैं प्रभु का काम कर पा रही हूँ। In the same way, all of you, even though you are old, you can ask for the Holy Spirit. और इसी तरह से आप सभी लोग, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप पवित्र आत्मा मांग सकते हैं। Right now you will be blessed. अभी इस समय आप आशीष पाएंगे। Do you have faith to receive it? क्या आपके पास विश्वास है कि इसे पाएं? Yes, come, we'll pray. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, thank you Lord for your presence. पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Come with all the
majesty. पिता अपने सारे प्रताप के साथ Those who आइए। are asking, Lord, bless them with the Holy Spirit. और प्रभु जो लोग मांग रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा से आशीष You दीजिए। have said, ask and it shall be given unto you. प्रभु आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया They are जाएगा। asking for the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। Those who are asking, kneel down and pray. और जो लोग मांग रहे हैं घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। Raise up your hands and cry out to the Lord. अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को पुकारिए। Right now, अभी इसी the Lord समय will fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। As an individual and as a family. एक व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में। Receive right now. अभी इसे ले ले, Receive. ले लीजिए Be blessed. और आशीष पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमीन। We have a special fasting prayer to pray for God to do miracles for you. हम विशेष उपवास प्रार्थना करने वाले हैं ताकि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे। Before entering the new year, we want to pray that God will turn all your sorrows into joy. नए साल में प्रवेश करने के पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में बदल So दे। come for this fasting prayer. और इसीलिए आप इस उपवास प्रार्थना में आइए। We'll be there as a family to pray with you and for you. हम आपके साथ में और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे परिवार के रूप में वहाँ उपलब्ध होंगे। Because it's the Christmas season, we'll have Christmas programs also. क्योंकि ये क्रिसमस का समय है, वहाँ पर क्रिसमस के भी प्रोग्राम होंगे। But the focus will be on prayer. लेकिन मुख्य गौर तो प्रार्थना पर होगा। Bring all your friends. अपने सारे मित्रों को लेकर आए। 14 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे से। जगह यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, वानगरम, चेन्नई। निशुल्क बस सुविधाएं उपलब्ध होंगी सुबह 8 बजे से सारे प्रार्थना भवनों से और कोयम्बेड बस डिपो से वानगरम प्रार्थना भवन तक। Let us pray together and have our sorrows turn into joy. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल दें। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष देंगे।